ایک نمبر جیسے آپ اپنی اپنی گفتگو کو اب میں ایک ایسے خطیب ذیشان کو دعوت سخن دے رہا ہوں جن سے میری مراد، جن سے میری چاہت نواز المدین ہے، فقط ان دو اشعار کے ساتھ کہ بروز حشر ہونٹوں پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے. سبحان اللہ. بروز حشر ہونٹوں پہ ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے. مدینہ جس نے دیکھا ہے وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے. نظر کو بخش دو ایسا اثر غریب نواز، نظر کو بخش دو ایسا اثر غریب نواز، نظر اٹھاؤ تو آؤ نظر غریب نواز. اور جب میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں کہ ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز، ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب نواز. اب آئیے جناب پہنچ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. صدق اللہ العظیم. شاعر کہتا ہے کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ. کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا. محترم حضرات، تو آئیے سب سے پہلے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھم جھم کر بآواز بلند درود شریف کی ڈالیاں نشاور پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو. برادران ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ ایمان پر خاتمے کی کتنی فکر کرتے ہیں یارو. کئی بار تو ہمیں خاتمے کی فکر نہیں تو پھر ایمان پر خاتمے کی کیا فکر. پتہ ہے کتنا نازک ہے ایمان پر خاتمہ. اللہ اکبر. سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ رکوع کرتے وقت اپنی پیٹھ کو صحیح طور پر سیدھا نہیں کرتے، مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کفر پر مریں گے. ابھی میں نمازی کی بات نہیں کرتا ہوں، نماز چھوڑنے والوں کی بات نہیں کرتا ہوں، بات ان کی کرتا ہوں جو لوگ رکوع کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے. مجھے ڈر ہے کہ جب وہ مریں گے تو کفر پر مریں گے. جو لوگ آذان کو سن کر آذان کا جواب نہیں دیتے بلکہ آذان کے وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے. جو لوگ اپنی نگاہوں کو آوارہ کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے. جو لوگ اپنی ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے. جو لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے. جو لوگ اللہ والے کی بے ادبی کرتے ہیں، علماء ربانیین کی توہین کرتے ہیں، مولویوں کو ہلکا جان کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ڈر ہے کہ مریں گے تو کفر پر مریں گے. بہت ساری علامتیں ہیں برے خاتمے کی، جس سے برے خاتمے کا اندیشہ ہے، جس سے برا خاتمہ ہو سکتا ہے. اللہ والے کی بے ادبی کرنا، علماء ربانیین کی توہین کرنا، مولویوں کو ہلکا جان کر ان کا مذاق اڑانا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، لوگوں کی حق تلفی کرنا، یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس سے برے خاتمے کا اندیشہ ہے، جس سے برا خاتمہ ہو سکتا ہے. میرے پیارے آقا نے کو گارنٹی نہیں دی ہے کہ یقیناً تمہارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، بلکہ تم کو آگاہ کر دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن
मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है, और जब तुम मरो इस हाल में रहो कि तुम ईमान पर रहो, तुम इस्लाम पर रहो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस इनाम मुकाबला के मौके पर मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हर मुसलमान ईमान की फिक्र करे, ईमान पर खात्मे की दुआ करे। और सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो लोग ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करते, मुझे डर है कि वो काफिर होंगे। इसलिए फिक्र करो ईमान पर खात्मे की, और उन आमाल से बचो जिससे बुरे खात्मे का अंदेशा है, जिससे बुरा खात्मा हो सकता है। और जो चीज़ बुरे खात्मे की तरफ ले जाती है वो है नमाज का तर्क करना, नमाज का छोड़ना। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इतनी खूबसूरत मस्जिदें बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। अल्लाह के घर से ज्यादा किसका घर इस बात का हकदार है कि वो खूबसूरत बने, इसलिए अच्छे से अच्छा बनाओ। लेकिन रंग और रोगन मस्जिद की जीनत नहीं है, झूमर और खूबसूरत महराब मस्जिद की जीनत नहीं है, बल्कि मस्जिद की जीनत तो नमाज़ों के सजदे में है। हमने एक मस्जिद ऐसी भी देखी है तसव्वुरात में, जिसकी छत खजूर के पत्तों की है, जिसकी दीवारें मिट्टी की होती है, बारिश होती है तो जमीन पर कीचड़ होता है, पेशानियों पर लगती है, लेकिन उसके नमाजी ऐसे थे, खुदा की कसम अब वो ऐसे नमाजी नजर ही नहीं आते। उसी मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं, जिसका इमाम इमामुल अंबिया थे, जिसकी मुक्तदी सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, साद सईद, अबू हुरैरा, जनाब ज़ैद और जनाब अनस जैसे लोग उस मस्जिद के मुसल्लियान थे। आप बताएं तो सही, उनके सज्दों का आलम क्या था, उनकी इबादतों का आलम क्या था। और आज मुसलमान नमाज से दूरी, गफलत पर गफलत। अल्लाहु अकबर। अगर किसी मुसलमान से ये पूछ लिया जाए, हाँ वो मर्द हो या औरत, तो अपने बड़े बड़े बहाने और अपनी बुरी बेबाकी से कहता है, बाबू जितना वक्त मिलता है उसके मुताबिक पढ़ लेता हूँ। वाह रे वाह, तुमको ये किसने कह दिया कि जितना वक्त मिले उसके मुताबिक पढ़ो, जितना वक्त मिले उसके मुताबिक पढ़ो? ये नहीं, बल्कि वक्त निकाल करके पढ़ो। इसलिए कि तुम पर नमाज पढ़ना फर्ज है, तुम पर रोजी कमाना फर्ज नहीं है, तुम पर दुकान चलाना फर्ज नहीं है, तुम पर नमाज पढ़ना फर्ज है। जो चीज फर्ज ना थी तुमने तो उस पर मेहनत किया, लेकिन जो चीज फर्ज है तुमने उसको छोड़ दिया, उसको नजरअंदाज कर दिया, उसको तर्क कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि रोजी ना कमाओ, कमाओ, बिल्कुल कमाओ, मैं उससे रोकने वाला नहीं हूँ, बल्कि हमारा और हमारी फिक्र तो ये है कि मुसलमान बार बार में इतनी तरक्की करे कि मुसलमान से ज्यादा कोई तरक्की में ना हो। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। लेकिन मेरे भाई, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, तुझे ये सबक किसने पढ़ा दिया कि जितना वक्त मिले उसके मुताबिक पढ़ो? अगर कोई दुकान छोड़ करके नमाज पढ़ता है तो उस नमाज में 20 मिनट का वक्त लगता है, तेरा कौन सा नुकसान हो जाएगा 20 मिनट में? तेरी कौन सी दुकान खाली हो जाएगी 20 मिनट के अंदर? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए जब नमाज का वक्त आ जाया करे तो सहाबा की सुन्नत पर अमल क्या करो, कारोबार को छोड़ दिया करो और नमाज की तैयारियां करो। और कितने लोग हैं जो इसी तरह नमाज की फिक्र करते हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरे सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग नमाजों को छोड़ देते हैं, मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, गोया कि वो कुफ्र के हद तक पहुंच गया। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। ये वो नमाज है जिसको सहाबा ने मैदान जंग में भी नहीं छोड़ा। और आज मुसलमान साए के नीचे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, आज मुसलमान पंखों के नीचे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। न मर्दों में नमाज पढ़ने का शौक रहा, न औरतों में नमाज पढ़ने का शौक रहा। इसलिए तो दुनिया भी तबाह हो रही है और आखिरत भी बर्बाद हो रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग नमाजों को जानबूझकर छोड़ देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी जिंदगी को कम फरमा देता है, उनके चेहरे से नूर को खत्म फरमा देता है। और मेरे आका कौनैन फरमाते हैं कि उनके रिस्क में बरकत उठा ली जाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आज तुम बेचैन नहीं, क्या आज तुम बेकरार नहीं? मुसलमानों पूरी दुनिया का हाल है, पूरी दुनिया में मुसलमान अक्सर बेनमाजी होती जा रही है। आप देखिए ना, लाखों का बैंक बैलेंस होने के बावजूद भी दिलों को चैन नहीं, नरम नरम बिस्तर पर सोने के बाद भी चैन की नींद नहीं आती। कौन है जो सुकून से है? किसी के घर में जवान बेटा बेटियां हैं, उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, आधी आधी रात आंख खुल जाती है, माँ बाप बिस्तर पर करवटें बदलते हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी को अच्छा रिश्ता कब आएगा। तो याद रखो, ये बेनमाजीपन की सजा है, इसलिए कि दुनिया में भी बेनमाजी को सजा कभी कभी दी जाती है। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं, आज औलाद जवान होकर के बेवफा हो गई, बूढ़ा बाप बेचैन है, बूढ़ा बाप तड़प रहा है कि मैंने तो अपनी जवानी औलाद के लिए दे दी और आज मेरी औलाद मुझसे बेवफा हो गई। मेरे आका फरमाते हैं कि बेनमाजी की औलाद बेवफा हुआ करती है। आप अंदाजा तो फरमाइए, घरों से रहमत उठ गई, घरों से बरकत उठ गई, दिलों के अंदर चैन नहीं, दिलों के अंदर करार नहीं, दिलों के अंदर इत्मीनान नहीं, दिलों के अंदर सुकून नहीं। किस वजह से? गुनाहों की वजह से, गुनाहों की सबब से, गुनाहों की वजह से
दिलों का चैन गया, गुनाहों की वजह से दिलों का करार गया, गुनाहों की वजह से दिलों का इत्मीनान गया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, चाहिए तो ये था कि मुसलमान अल्लाह के बारगाह में तौबा करता, रब की बारगाह में रुजू करता, रब की बारगाह में पलट आता। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल क्या खूब कहते हैं कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। और शायद यूं क्या खूब फरमाते हैं कि पढ़ नमाज़े पंच गाना, पढ़ नमाज़े पंच गाना, ना कर कोई बहाना, इसी में है तेरी जन्नत, वरना जहन्नम होगा ठिकाना, वरना जहन्नम होगा ठिकाना।